امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے. وَلَمْ يُخْبِرْنَا كَيْفَ يَنزِلُ، لیکن اللہ نے ہمیں یہ خبر نہیں دی ہے کہ وہ آسمانی دنیا پر کیسے نازل ہوتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو باتیں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اتنے پر ہمارا ایمان رکھنا واجب ہے، اتنے پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس سے ہٹ کر مزید اپنی طرف سے کوئی بات کہنا، کوئی کیفیت بتلانا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اچھا، اللہ وجود کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش عظیم کے اوپر ہے، جیسا کہ اس کے جلال کے لیے مناسب ہے، مگر اپنے علم کے اعتبار سے، ادراک کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے اور سب کی خبر رکھتا ہے. اس کے اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، اسے کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھولتا نہیں، وہ ہمیشہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تمام انس و جن، فرشتے، جاندار و بے جان، خواہ وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو چکے ہوں یا وہ دنیا کے اندر موجود ہوں، ان کے ہر عمل کا ریکارڈ اللہ کے علم میں ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ وجود کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش عظیم کے اوپر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ ہر ایک کی بات، ہر ایک کے عمل کو سنتا ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کی خبر رکھتا ہے. اس کے اور مخلوق کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا اپنی مخلوقات سے، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، اسے کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی بھولتا نہیں، ہمیشہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود کے اعتبار سے عرش عظیم کے اوپر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، جاننے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے وہ ہر جگہ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے اور ہر ایک کی خبر رکھتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ پر ایمان کا جو مفہوم ہے، اللہ پر ایمان کا مفہوم، اللہ پر ایمان کا مطلب ہے، اللہ کے پر ایمان کے مفہوم میں بات بھی داخل ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ موجود ہے. کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے. کن کن چیزوں میں اللہ اکیلا ہے؟ تین چیزوں میں، بلکہ آپ کہہ لیجیے کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننے اور ایک جاننے کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس عقیدے کو آپ عقیدے توحید کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اپنے سارے کاموں کو وہ تنہا انجام دینے والا ہے. اللہ کے جو کام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کاموں کو تنہا انجام دیتا ہے. اللہ اپنے کام کرنے کے لیے کسی کی مدد نہیں لیتا، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ کسی سے مشورے کرتا ہے اور نہ کسی سے تعاون لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کام خود تنہا کرتا ہے، اور جو کام اللہ کا ہے وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. جو کام اللہ کا ہے وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ اپنے کاموں میں تنہا ہے، اللہ اپنے کاموں کو تنہا انجام دینے والا ہے. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت. کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت. یعنی اللہ کو تنہا رب مانا جائے، اللہ کو تنہا رب مانا جائے. اب سوال یہ ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں، رب کی صفات کیا ہے؟ رب کی صفات میں چار چیزیں داخل ہیں. نمبر ایک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہوں، زمین کی تہوں میں ہوں، فضاؤں میں ہوں، آسمان اور آسمان کے اوپر ہوں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سب چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا. دیکھیں، ایک ہے بنانا، ایک ہے پیدا کرنا. بنانا جسے کہتے ہیں صانع. آدمی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بناتا ہے نا، سوئی بناتا ہے، دھاگا بناتا ہے، مشین بناتا ہے، کمپیوٹر بناتا ہے. اسے کہتے ہیں صانع، بنانے والا. تو صانع میں کیا ہوتا ہے؟ صانع جو صانع ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، وہ مٹیریل کے ذریعے کیا کوئی چیز بناتا ہے. اور خالق یہ خلق سے ہے کے معنی ہوتے ہیں بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی مٹیریل
ताला चीज़ों का पैदा करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब आसमान को पैदा किया तो उसे किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब सूरज को पैदा किया उसे किसी मटेरियल की और सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही अल्लाह ने ज़मीन बनाई, पानी को पैदा किया, हवाओं को पैदा किया, जंगलात को पैदा किया, है ना। अल्लाह ने चीज़ों को जो पैदा किया है, चीज़ों के पैदा करने में उसे किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं, हाजत नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। उसका मामला यह है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, वो चीज़ हो जाती है। वो चीज़ क्या है? हो जाती है। उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं अपने कामों को करने में, और न उसे किसी मटेरियल की ज़रूरत है। तो खालिक कहते हैं बगैर किसी मटेरियल के चीज़ों का पैदा करने वाला, और इस अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुदरत है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुदरत है। देखें, तो मैं कह रहा था कि रब की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि वो क्या है? खालिक है। जो खालिक है वही रब हो सकता है, खालिक के अलावा कोई और रब नहीं हो सकता है। रब की खुसूसियात में से दूसरी खुसूसियत यह है कि वो मालिक है। वो क्या है? मालिक है। जाहिर है जिसने पैदा किया है, जिसने बनाया है, जिसने आसमान और ज़मीन और कायनात की सारी चीज़ों को पैदा किया, बनाया है, वही ना मालिक होगा, वही मालिक होगा। पैदा करे अल्लाह, मालिक रहे कोई और नहीं। जाहिर है कि जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है, वही क्या है? मालिक है। तो ये अक़ीदा रखा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला रब ही खालिक है, वही रब ही मालिक है। और रब की तीसरी खुसूसियत यह है राज़िक़। जो हस्ती मालिक है वही क्या है? अता करने वाली भी है। आप देखें तसलसल लगातार कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ही खालिक है, कायनात में सारी चीज़ों का खालिक कौन है? अल्लाह। अच्छा, जो खालिक है वही मालिक है ना। जो मालिक है वही राज़िक़ है, वही अता करने वाला है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह मालिक रहे, अल्लाह दे कोई और, मालिक रहे अल्लाह और मांगे किसी और से, मालिक हो अल्लाह सब चीज़ों का, झुके किसी और के आगे, और किसी और के बारे में अक़ीदा रखे नहीं वो रोज़ी बढ़ा सकते हैं, वो परेशानी टाल सकते हैं, नहीं। ये अक़ीदा रखना। रब की तीसरी खुसूसियत यह है कि रब ही तमाम मखलूक़ात का राज़िक़ है, तमाम मखलूक़ात का राज़िक़ है। और रब की चौथी खुसूसियत यह है कि इस कायनात पर तसर्रुफ़ और इख्तियार और हुक्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का चलता है। इस कायनात और कायनात की मखलूक़ात पर किसकी हुकूमत चलती है? अल्लाह सुब्हानहू ताला की। अल्लाह ही आसमान से बारिश बरसाता है, अल्लाह ही हवाओं को चलाता है, अल्लाह ही दिन और रात लाता है, वही सूरज, चांद और तारों का मालिक है। वो जो हुक्म देता है, दुनिया की सारी चीज़ें रब के हुक्म के ताबे हैं, रब के हुक्म के ताबे हैं। अब यहाँ सवाल यह है, अगर कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू ताला को उसके कामों में तन्हा मानता है कि अल्लाह ही अपने कामों को तन्हा अंजाम देने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही कायनात की सारी चीज़ों का मालिक है, वही रोज़ी देने वाला है, और वही इस कायनात पर हुकूमत करने वाला है, दुनिया की सारी चीज़ें उसी के हुक्म के ताबे हैं, वही मारने वाला है, वही जिलाने वाला है, जो ये अक़ीदा रखता है, क्या इतना अक़ीदा रख लेना निजात के लिए काफ़ी है? अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक़, हाकिम, मुदब्बिर कायनात और मारने वाला, जिलाने वाला है, अल्लाह को अपने उसके कामों में तन्हा समझने का जो अक़ीदा है, अगर कोई शख्स अल्लाह को उसके कामों में तन्हा जानता है तो क्या वो मोमिन हो जाएगा? देखें, मोमिन बनने के लिए ये तो ज़रूरी है, मगर अल्लाह को तन्हा रब मानना ही काफ़ी नहीं है निजात के लिए, ईमान के लिए, बल्कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह को एक मानना है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह को एक मानना, वो आगे बतलाएंगे हम। तो आज हम बतलाना चाहते हैं कि अल्लाह को एक मानने का जो अक़ीदा है, उस अक़ीदे को आप 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह को उसके कामों में एक माना जाए। नंबर 2, अल्लाह को अपनी सारी इबादतों में एक माना जाए, एक जाना जाए। और ऐसे ही तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह को उसके मकाम और उसकी खूबियों में एक जाना जाए। ये 3 हिस्से हैं अल्लाह को एक मानने का जो अक़ीदा है। अल्लाह को एक मानने का जो अक़ीदा है, इसको आप 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह को उसके कामों में एक माना जाए, यानी उसको तन्हा रब माना जाए। नंबर 2, अपने कामों में, यानी अपने
सारी इबादतों में अल्लाह को एक माना जाए और दुनिया और सारी इबादतें उसी एक अल्लाह के लिए की जाए। और नंबर 3, अल्लाह की खूबियों में अल्लाह का जो मकाम मर्तबा है, इसकी जो खूबियाँ हैं, अल्लाह को उसकी खूबियों में एक माना जाए, अल्लाह को उसकी खूबियों में एक माना जाए। जो शख्स इन तीनों चीज़ों में अल्लाह को एक मानेगा वही क्या मुसलमान होगा। अगर कोई शख्स एक चीज़ में अल्लाह को एक मानता, दूसरे में अल्लाह को एक नहीं मानता, नहीं जानता, तो वो काफिर होगा, वो मुशरिक होगा, है ना। तो मुवहिद बनने के लिए ज़रूरी है कि हम इन तीनों चीज़ों में अल्लाह को एक माने। नंबर 1, अल्लाह को उसके कामों में एक माना जाए, जिसे कहते हैं तौहीद रुबूबियत। रब, अल्लाह को तन्हा रब माना जाए, ये अकीदा रखा जाए कि अल्लाह ही सारी कायनात का खालिक है, वही सारी कायनात का मालिक है, वही सारी मखलूकात का राज़िक है, और वही इस दुनिया पर उसी के हुक्म से दुनिया का निज़ाम चलता है। इस दुनिया पर तसर्रुफ और इख्तियार का वही मालिक है और वही मारने वाला और जिलाने वाला है। देखें, मुशरिकीन मक्का अल्लाह सुब्हानहू तआला को खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम मानते थे, मुदब्बिर कायनात मानते थे, और ये अकीदा रखते थे कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, अल्लाह ही कायनात की सारी चीज़ों का मालिक है, अल्लाह ही इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला है, अल्लाह ही मारने वाला है, अल्लाह ही जिलाने वाला है। मुशरिकीन मक्का, अबू जहल, अबू लहब, इस सारे लोग इस बात को मानते थे, अल्लाह को उसके कामों में एक जानते थे। दलील क्या है? कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, सूरह अल-कबूत आयत नंबर 61 में अल्लाह फरमाते हैं, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख़्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। ऐ नबी, अगर आप इनसे पूछें, मुख़ातब कौन है? मुशरिकीन मक्का। ऐ नबी, अगर आप इन मुशरिकीन मक्का से पूछें, मन खलक़स समावाति वल अर्द, क्या आसमान और ज़मीन किसने पैदा किया, व सख़्खर अश-शम्स वल क़मर, और सूरज और चाँद को किसने ताबे बनाया है, लयक़ूलुन्न अल्लाह, वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है और सूरज चाँद अल्लाह ही के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह कहता है फ़अन्ना युफ़कून, फिर वो कहाँ भटक रहे हैं, फिर वो कहाँ भटक रहे हैं। ऐसे इस सूरह अल-कबूत आयत नंबर 63 में अल्लाह फरमाते हैं, वला इन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्द मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह फरमाते हैं, अगर आप इनसे पूछें कि आसमान से पानी कौन बरसाता है, आसमान से पानी कौन नाज़िल फरमाता है, और फ़अहया बिहिल अर्द, और आसमानी बारिश से ज़मीन को जिंदगी कौन अता फरमाता है, जमीन को कौन हरा भरा करता है, बावजूद इसके कि वो जमीन क्या खुश्क हो जाती है, सूख जाती है, आसमान से बारिश होती है और जमीन हरी भरी हो जाती है। अल्लाह कहता है, कौन है जो आसमान से बारिश बरसाता है और जमीन को हरा भरा कर देता है? आप इनसे पूछिए, लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो अल्लाह कहता है कि ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ही आसमान से बारिश बरसाता है और जमीन से पौधे उगाता है। क़ुलिल हम्दुलिल्लाह, कहिए तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, इन मुशरिकीन में से अक्सर लोग समझते नहीं हैं, अक्ल नहीं रखते हैं। ऐसे ही सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत 87 में अल्लाह फरमाते हैं, वला इन सअलतहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून, कि नबी अगर आप इनसे पूछें कि इनको किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे अल्लाह। क्या कहेंगे? अल्लाह। तो इन आयतों से, इनके अलावा और भी आयतें हैं, इन आयतों से बात मालूम हुई कि मुशरिकीन मक्का इस बात पर ईमान और यकीन रखते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने कामों को तन्हा अंजाम देने वाला है, अल्लाह कायनात की सारी चीज़ों को तन्हा पैदा करने वाला है, वही कायनात की सारी चीज़ों का मालिक है, वही सारी मखलूकात को रोज़ी देने वाला है और उसी के हुक्म से दुनिया का निज़ाम चलता है, वही मारने और चलाने वाला है। मुशरिकीन मक्का इस बात को मानते थे, मगर वो अपनी इबादतों में अल्लाह को तन्हा नहीं समझते थे, अपनी इबादतें वो गैरुल्लाह के लिए करते थे, दूसरों के लिए करते थे, जो इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में बतलाएंगे। तो मैं कह ही रहा था कि अल्लाह को एक मानने का जो अकीदा है, इस अकीदे को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके कामों में, उसके रब होने में अकेला माना जाए, और बतलाना कि रब की 4 खुसूसियात हैं। नंबर 1, वो वही पैदा करने वाला है कायनात की सारी चीज़ों का, और वही सारी चीज़ों का मालिक है, वही रोज़ी देने वाला है, और वही इस कायनात पर क्या है, हुकूमत करने वाला है। दुनिया की सारी मखलूकात उसी के हुक्म के ताबे है, उसी के हुक्म के ताबे है।
اور بتلا میں نے آپ کے سامنے کہ مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی اپنے کاموں کو تنہا انجام دینے والا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اللہ ہی آسمان سے بارش برسانے والا ہے, اللہ ہی زمین سے پودے نکالنے والا ہے. یہ ساری باتیں مشرکین مکہ مانتے تھے, مگر وہ اپنی عبادت میں اللہ کو ایک نہیں جانتے تھے. اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ غیروں کے لیے کرتے تھے, جس کی بنا پر وہ کیا ہے مشرک قرار پائے, مشرک قرار پائے. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں, اگلی کلاس میں بیان کی جائے گی. اگر آج کے درس سے متعلق کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھیں. جو مرد حضرات ہیں وہ مائک بائیں طرف, ان کے بائیں طرف جو مائک ہے اس پر کلک کر کے وہ آواز ساؤنڈ کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں, اور جو بہنیں ہیں وہ سوال لکھ کر پوچھ سکتی ہیں. کہ کوئی سوال کسی کے پاس؟ محمد سلیم صاحب, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج شاید آپ پہلی بار کلاس اٹینڈ کیے ہیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ مزید اور ساتھیوں کو بھی اس پروگرام سے جوائن کریں اور اس پروگرام کو پھیلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. میرا کوشچن ہے, جو مکہ کا کافر جو عبادت کرتا ہے وہ کس میں شریک کرتا ہے, الوہیت, ربوبیت اور اسماء و صفات؟ یہ صحیح سے بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سوال کیا کہ جو مکے کے مشرکین تھے, کفار تھے, وہ کس چیز میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے؟ کیا ربوبیت میں کرتے تھے, یا الوہیت میں کرتے تھے, یا اسماء و صفات میں کرتے تھے؟ دیکھیں, وہ ربوبیت میں اللہ کے رب ہونے میں, انہیں کوئی شبہ نہیں تھا, کوئی شک نہیں تھا. وہ تنہا اللہ کو رب مانتے تھے, ہے نا. لیکن الوہیت میں, یعنی اللہ کے معبود واحد ہونے میں, کہ اللہ ہی تنہا معبود ہے, وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے, اس میں وہ کیا ہے شک کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے. بلکہ وہ بہت سارے معبودوں کے قائل تھے کہ عبادت کیا ہے اور بھی لوگوں کی جائے گی, ہے نا. اور اسی لیے ہم آگے بتلائیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ توحید الوہیت پر. آگے درس میں ہم تفصیل بتلائیں گے کہ وہ اپنی عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کرتے تھے, جس کی بنا پر کیا وہ مشرک قرار پائے. ایسی اللہ کی جو خوبیاں ہیں, وہ خوبیاں وہ اپنے غیروں کے لیے کرتے تھے تو مشرک قرار پائے. وہ توحید ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے, اللہ کو تنہا رب مانتے تھے. الوہیت اور اسماء و صفات میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. اور کوئی سوال؟ میں مائک چھوڑ دیتا ہوں. سوال کریں. سلیم صاحب, میں سمجھا نہیں کیا پوچھ رہی ہیں سلمہ. یہ سلاموں پورلے کی روگر ہونے کو وہ فائدہ
वो भी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, मेरे इधर जो फोन है सलमा शली, वो एक क्वेश्चन इधर लिखा है। बस सलमा शली के बोलते सीखा है या सलाम माने के देखिए अल्लाह सल्ली अला मुबारक अलैहि बोलते अच्छा या सलाम। शेख, मेरे जो फोन है इधर सलमा शली, वो क्वेश्चन किया, वो बोलना चाहता है या सलाम हो जो अल्लाह के नाम है, वो बोलने के कोई फायदा है? वो उसका ऐसा वो जानकारी है, वो बोलना चाहता है जो या सलाम हो वो पाठ करेगा ना तो उसके जो बीमारी है वो हट जाएगा, ऐसे फिक्र कर रहा है। और उसका फिक्र सही है कि ना, वो जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो सवाल किया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम, अल्लाह के नाम में से एक नाम क्या है? अस्सलाम। ये अल्लाह के नाम में से एक नाम है अस्सलाम। अल्लाह सलामती वाला है, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या सलाम का विर्द करने से अस्सलाम 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 अल्लाह का ये नाम 100 बार 1000 बार लेने से क्या कोई फायदा है? ये पूछ रही है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अज़कार और दुआओं के तरीके बतलाए हैं, ठीक है। जिक्र अज़कार और दुआओं के तरीके बतलाए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिक्र अज़कार किए हैं, दुआएं की हैं, मगर आपने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है किसी भी मुसीबत के वक्त, किसी परेशानी के वक्त कि आदमी सिर्फ अल्लाह 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 हु सलाम 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 या रहमान 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 रहमान, आपने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। आप एक ही नाम को इस तरह से जो है बार बार 100 बार 1000 बार आप ले दोहराएं, सलाम 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 या अल्लाह 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 या हु जैसा कि सूफिया लोग करते हैं, या रहमान 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 या गफ़ार गफ़ार गफ़ार, इस तरह आपने कोई जिक्र नहीं किया है और ना ही कोई जिक्र का ये तरीका सिखाया है, ठीक है। तो इस तरह सबूत नहीं है और वैसे ही जिक्र करें, वैसे ही अल्लाह को याद करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी के जरिए हमें तालीम दी है ना। तो मुसीबतों और परेशानियों के वक्त आपने दूसरी दुआएं बतलाई हैं जिसमें अल्लाह के अस्माए हुस्ना भी हैं और अल्लाह से जो है परेशानियों की, अल्लाह की पनाह मांगी गई है परेशानियों से। आप वो दुआएं पढ़ें और सलाम सलाम करके इस तरह से ये कहना कि इतनी बार सलाम सलाम अल्लाह का नाम लो तो उसका ये फायदा होगा, ये साबित नहीं है, इसे बिदात का तरीका है। और ठीक है, हाँ बिदात है, ये क्या है? ये बिदात है। और कोई सवाल किसी के पास? बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगला प्रोग्राम जुमेरात थर्सडे और सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 10:30 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आम करें, फैलाएं और साथियों को भी जैसे ज्वाइन करें। अल्लाह तौफीक दे हमें दीन सीखने सिखाने फैलाने की। अल्लाह तौफीक दे आपने रब्बुल आलमीन ने हज़रात इस प्रोग्राम में शरीक हैं। अल्लाह सुब्हानहू उन्हें दुनिया आखिरत की साथ में उन्हें उनके हक में उनके अहल व अयाल में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।